This this topic will give you a glance that how any genome can be annotated for the protein and gene information, and then how a particular genome is localized for the genomic region, and then you can also give some features like information to the databases. So these are the three major points which we will look after into this today's topic. So first, to go into that, to learn into that topic, we need to understand what is the genome annotation is all about. So we'll learn this through NCBI and what is genome annotation, and then we'll try to solve on our own that whole part of genome annotation. What is exactly a genome annotation is? Genome annotation means, as you all know, genome is a big structure having so many nucleotides, generally in GB and KBs or in MB sometimes, and they possess the gene regions. Okay. Now, as we have already learned, there are three types of genes which we need to allocate onto the genome. That is mRNA, rRNA, and tRNA coding genes. These three gene regions we need to annote on a genome sequence. Okay. So what is the general procedure? General procedure is that we need to give an organism, or we need to procure one particular organism on which we wanted to investigate. That organism we will isolate for their chromosomes. As we all know, there are different types of chromosomes are there. The mitochondria, chloroplast, then plasmid, and then even nuclear. So depending upon the type of the genome you wanted to investigate, you will isolate that particular genome. Now in a genome, as we know, sometimes we have more than one chromosome, so we need to separate them chromosome wise also. Okay, so genome can have more than one chromosome, okay, or it may have only one chromosome. Depends on the what type of organism we are investigating. Then once the chromosome gets what you can say uh, get separate out, we need to break down that genome into very small parts. Okay, and those small parts becomes the what you can say fragments of the genome, and every fragment of the genome is actually a part of the what you can say genome, but it gets fragmented out, it gets sorted out. Okay, then for that each fragment we need to go for the sequencing. Okay, after getting the sequence out of it, we need to assemble that genome. So there are some softwares available like genome assemblers who will help us to go for the genome assembly. After getting genome assembly, we need to screen for the right gene, right arrangement of that fragments, and ultimately we can able to find out the genes. This is the procedure. I will explain it afterwards. So what is our today's aim? Today's aim is to find out a basic information about the uh, genome assembly. Okay, so first part which we will cover today is the what is the genome assembly. So I will take one example. For example, I will take this bacterium Bacillus subtilis. So I'm searching for this bacteria Bacillus subtilis genome. What kind of information comes out? Just see. Now this is a Bacillus subtilis link for us in a NCBI. As I already told you, in a Bacillus subtilis, we have number of strains. As you can see here, these are the strains of the Bacillus subtilis. You can choose any one of them as per your need. Right now, by default, it has been given here subspecies subtilis strain 168. I am taking this. I want a nucleotide genome sequence, so I am just clicking onto this one. So once I started to get the information about it, this format is known as GenBank format. So you will get the GenBank format. It's a small format right now, but it gives you very detailed information also. Okay, so it's a GenBank format which is in front of us. But I don't want GenBank format. I want the sequence features part. This is a sequence features part. Highlight sequence features part. Just click onto it. Now what will happen? It will start downloading.
not coming. So for that actually we need to give some region, then and then only it will give you the information. So I will give some region, that is the nucleotide region. Okay, so I want the information of up to 50,000 nucleotides. Okay, update view. So this is a region where you can actually see the 1 to 50,000 nucleotides. I am saying to them update view. Okay, so as soon as I told them like that, they have started to give me update. Okay, now you can see here it has been updated. Okay, so the region which is available to showcase it to you, that is 1 to 50,000 nucleotides. So इसमें जितने भी जीन्स होंगे वो सब आपको दिखना शुरू हो जाएंगे. So अब तक हमको क्या समझा? Once you go to the genome database, अगर आप उसका जीनोम डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो होता है जेन बैंक फॉर्मेट. ये आपको जो दिख रहा है सामने में, ये जेन बैंक फॉर्मेट है. जेन बैंक फॉर्मेट में अगर आप कंप्लीट जीनोम डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हो तो ये जेन बैंक फॉर्मेट एज सच कंप्लीटली डाउनलोड होता नहीं है. इट टेक्स टाइम. ठीक है, इसलिए वो स्टॉप कर देता है खुद को. और आप क्या कर सकते हैं, आप इधर आ सकते हैं, दैट यू कैन चेंज द रीजन ऑफ व्यू. कितना न्यूक्लियोटाइड्स का आपको व्यू देखना है वो आप देख सकते हैं. सो बिगिन से लेके 50,000 का व्यू मैं चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया. इसको बोलते हैं सेक्शन व्यू या रीजन व्यू. आपने रीजन व्यू लिया, यानी इतनी न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो भी है वो आपको यहाँ दिख रहा है ना. क्या है वो देखना बहुत जरूरी है. थोड़ा थोड़ा वन बाय वन विल लर्न. Whenever any NCBI entry comes, okay, it always comes with the one title. As you can see, this is one of the title. It's a complete genome sequence of Bacillus subtilis. Then they always give you a locus. Locus is nothing but the accession number entry. Then right now we have selected 50,000 nucleotides. That's why you will see the nucleotide range 50,000. The sequence which we are getting from this entry is of DNA. Okay, तो आप हमेशा बोले सर कंप्लीट जीनोम तो डीएनए का ही होता है. ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जो आरएनए जीनोम से होते हैं, जैसे कोरोना वायरस है. सो यू विल सी एंड एट दैट प्लेस आरएनए. ओके, then this genome is a linear genome. Okay, right now it's a linear genome, and this has been submitted on 12th February 2021. So this is the date of publication of this particular genome. So again accession number is given. This is a very unique number given to every entry. Okay, from that entry you are looking at a 1 to 50,000 nucleotides only. That's why they have mentioned this. Okay, then NC underscore 00964.3 means this accession number is also available in some other databases also. You have some other links also for this genome sequence. By clicking onto this you can go to that part which is of our interest. Then from which organism this has been originated they have given. Then these are the papers on which this notation has been reported. So these are the research articles submitted by the authors to the different journals. So you can see there are some journals are there, 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Total 8 articles have been published with this genome sequence by the real author. Huh? By the real author means the one who has actually sequenced it. It is not that we can put our reference here. Only those research articles which user means the producer of this genome sequence has been submitted. The very important aspect in this GenBank format is this one, that is known as features table. ये बहुत important है क्योंकि जीनोम के अंदर जो सारी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको फीचर टेबल में लोकलाइज्ड हुई दिखेगी. व्हाट इज दिस फीचर्स टेबल, ये हमको समझना बहुत जरूरी है. सो फीचर्स टेबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन वेयर यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी न्यूक्लियोटाइड encoding a particular gene, giving a particular gene and encoding particular mRNA or RNA or tRNA. So right now we are looking for this 50,000. Now these all 50,000 nucleotides belongs to Bacillus subtilis subspecies subtilis strain 168. तो आप बोलोगे सर हाँ हमेशा तो ऐसे ही होना चाहिए
कि पूरा 1 से 50,000 जो न्यूक्लियोटाइड अभी हमको दिखने वाला है वो तो इसी का होगा, बैसिलस सबटिलिस का। पर ऐसा नहीं होता, कभी कभी क्या होता है ना, आप अगर PBr322 प्लाज्मिड का सीक्वेंस डाउनलोड करें तो उसमें क्या है, आधा पार्ट PSC101 का है और दूसरा है PSC102, ऐसे दो प्लाज्मिड से वो सीक्वेंस बना हुआ है। तो आपको फिर वो रीजन बताएगा कि आपने पूरा सीक्वेंस सिलेक्ट किया पर उसमें कौन सा रीजन कौन से पर्टिकुलर ओरिजिन से आया है। So this is a very important that all 50,000 belongs to Bacillus subtilis, यानी इसमें कोई भी foreign DNA नहीं है, ये genetically engineered नहीं है. This is a genomic DNA. Okay. Click. If it has been said genomic means it doesn't contain any plasmid DNA. It is of strain 168 and subspecies subtilis. Okay. This is a taxonomical ID of Bacillus subtilis 224308. ठीक है, तो ये टैक्सोनॉमिकल आईडी जो हम एनसीबीआई टैक्सोनॉमी में जाते हैं ना, तो वो जो नंबर होता है ये वो नंबर है। और अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया। उसने उसने बोला कि दैट दिस इज अ फर्स्ट जीन। ओके, सो आपका जो जीनोम है बैसिलस सबटिलिस का, उसका पहला जीन, इसका फर्स्ट जीन स्टार्ट होता है 410 से और एंड होता है 1750। So your first gene onto this genome starts with 410, ends on 1750. Or and when they have found out the function of that gene, it has been related with the DNA A. ठीक है, DNA A से उसको टैग किया गया। देन उसका कोडिंग सीक्वेंस भी रिकॉग्नाइज किया गया। पूरा का पूरा सीक्वेंस कोडिंग सीक्वेंस है, 410 से 1750 तक पूरा का पूरा कोडिंग सीक्वेंस। अल्टीमेटली ये जीन ही है, अगेन डीएनए ए ही दे रहा है एंड इसका फंक्शन जो है वो रेप्लिकेशन में है ना, डीएनए ए है तो। और कोडॉन स्टार्ट कहाँ से होता है, देखिए कोडॉन स्टार्ट्स विद कोडॉन नंबर 1, फर्स्ट कोडॉन से ही उसका कोडॉन स्टार्ट हो रहा है और ट्रांसलेशन टेबल फॉलो कर रहा है 11, तो आपको ही पता है। और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट मिलेगा इससे, यानी जो प्रोटीन मिलेगा वो ये है, क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन इनिशिएटर इंफॉर्मेशनल एटीपीएस। ये आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा एक चीजें क्या है, जब तक हम प्रोटीओमिक्स में नहीं जाएंगे ये पार्ट नहीं समझेगा, ठीक है, इसको हम अभी स्किप करते हैं। आपका जो जीन है जो स्टार्ट हो रहा है 410 से और 1750 से तक, it gives you this amino acid. Okay, this is the amino acid sequence. तो आपने अल्टीमेटली क्या समझा यहाँ पे कि आप जीनोम को अनोट करने की कोशिश कर रहे हो। जीनोम को अनोट कर रहे हैं यानी क्या, उसके जो रीजन्स है उसका फंक्शन क्या क्या है ये बताते जा रहा हूँ। इन्होंने बता दिया सबसे पहले कि 410 से 1750 तक जो जो रीजन है वो डीएनए ए जीन के लिए है एंड अल्टीमेटली कोड्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोटीन। ओके, देन सेकंड जीन स्टार्ट्स विद 1939 एंड एंड्स ऑन 3075। ठीक है, तो पहला कहाँ खत्म हुआ था 1750 और सेकंड फिर शुरू हुआ 1939, तो बीच में कम से कम 200 न्यूक्लियोटाइड का गैप है ना। फिर सेकंड जीन शुरू हुआ, फिर अगेन वही चीज हो रही है सीडीएस। इस तरह से आपको इतने सारे जीन्स दिख रहे हैं, है ना, कंटिन्यूसली आपको जीन्स दिख रहे हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे फिलअप की हुई है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करने के लिए उनको बहुत मेहनत लगी होगी, हाँ या ना, बहुत ज्यादा उनको एफर्ट्स लेने पड़े होंगे, इतने सारे जीन्स का अनोटेशंस करना है एंड ऑल। देखो यहाँ पे टीआरएनए भी दिखा मुझे कहीं तो भी, दिस इज टीआरएनए है ना, टीआरएनए भी आपको यहाँ दिख रहे, टीआरएनए कोडिंग है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज जेन बैंक फॉर्मेट इंफॉर्मेशन ऑफ अ जीनोम। ठीक है, जहाँ पे जीनोम के अंदर जितने भी जीन्स है वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ये इतना सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे। ठीक है, इतना सारा इंफॉर्मेशन अगर हम खुद करना चाहे तो हम खुद भी सबमिट कर सकते हैं क्या, या खुद भी डेवलप कर सकते हैं केस इंफॉर्मेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो विल कंसिडर अ सिचुएशन कि जहां पे आपने इसी ऑर्गेनिज्म का एक फास्टा फॉर्मेट ले लिया। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यू कैन गिव अ सर्विस टू द सीक्वेंसिंग एजेंसी टू प्रोवाइड अ सीक्वेंस फॉर योर ओन बैक्टीरिया, फंगस, एनिमल सेल, any particular species, or ultimately what they will do,
दे विल गिव यू अ सीक्वेंस लाइक दिस। तो मैंने कहाँ क्लिक किया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आई हैव क्लिक्ड ऑन टू दिस वन, ठीक है, बिकॉज राइट नाउ इन जेन बैंक फॉर्मेट, यू आर इन जेन बैंक फॉर्मेट, आप जेन बैंक फॉर्मेट में हो। मैं चाहता हूं कि आप कहाँ जाए, फास्टा फॉर्मेट में आए। तो मैं जैसे ही फास्टा फॉर्मेट करता हूँ, ये HTML फास्टा फॉर्मेट है, यानी आप ऑनलाइन हो अभी भी। आपको अब रियल बैसिलस सबटिलिस का 168 स्ट्रेन नंबर का 50,000 न्यूक्लियोटाइड का रीजन दिख रहा है फॉर इट्स जीनोम। इट्स अ ह्यूज सीक्वेंस। ओके, इट्स अ ह्यूज सीक्वेंस। देखिए अभी तो स्क्रॉल खत्म ही नहीं हो रहा है, ये यहीं पे मैं यहाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ, हिल भी नहीं रहा है, हल्का हल्का सा हिल रहा है। सो इट्स अ ह्यूज रीजन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो हमने तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट टास्क, हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। हमारा मेन टास्क है आई विल सिलेक्ट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म का हमको जीनोम सीक्वेंसिंग करना है, ठीक है, genome sequencing. So if I wanted to go for genome sequencing, I need to consider the type of the genome which I wanted to go for. So I know there are two types of genome, one is nuclear, another is extra nuclear. कौन सा करना है वो आपको डिसाइड करना है। So if I wanted to go for nuclear genome, तो मैं उसका जो रियल जीनोम है उसको सिलेक्ट करूंगा, तो मैं उसको मान के चलता हूँ न्यूक्लियर जीनोम आपको सिलेक्ट करेंगे। Now I know in a nuclear genome sometimes they may have one chromosome or they may have more than one chromosome, okay. So अगर एक क्रोमोसोम है या एक से ज्यादा क्रोमोसोम है ये आप चूज करिए, then separate them, आप उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए आप यूज करेंगे इलेक्ट्रोफोरोसिस। मुझे कोई बता सकता है कि क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोफोरोसिस यूज करते हैं? अभी तक के आपने इलेक्ट्रोफोरोसिस पढ़े होंगे, है ना। पर क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए कौन सा इलेक्ट्रोफोरेटिक सिस्टम यूज करते हैं, कोई बता सकता है? शायद नहीं पता होगा, पर पढ़ा भी होगा आपने। इसका नाम है पर्ल स्पिल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये यूज करते हैं पर्ल स्पिल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या करते हैं ना, दे गिव्स अ वेराइड डायरेक्शन बेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ठीक है। इसका पूरा मैकेनिज्म आप बाद में पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, आप उसको पढ़ लीजिए कि पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से कैसे क्रोमोसोम्स को सेपरेट किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर 1 से 40 क्रोमोसोम्स हैं, देन यू विल सिलेक्ट फर्स्ट वन बाय वन, यू विल सिलेक्ट, ओके, यू विल सिलेक्ट क्रोमोसोम, ओके। तो मान के चलता हूँ कि आई एम डूइंग फॉर द क्रोमोसोम नंबर 1, तो ये मेरा क्रोमोसोम हो गया, एक प्रकार का जीनोम हो गया मेरे लिए, क्योंकि इट्स अ बिग बॉडी, है ना। एक नंबर का क्रोमोसोम भी हम लेते हैं तो इट्स बिग सीक्वेंस, so it will be in some lakhs of nucleotides will be there. Now I have selected considering that there is a one particular chromosome whose number is chromosome number 1. What is next? I will obtain it in a pure form, obtain it in a pure form। सबसे पहले मैं उसको प्योर फॉर्म में ला लूंगा, एंड आफ्टर दैट आई विल प्रिपेयर अ लाइब्रेरी। ये आपने पढ़ा है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। आप उसकी क्या बनाएंगे, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कैसी होती है, इसको बोलते हैं शॉटगन लाइब्रेरी, पढ़ा होगा, है ना, सबने पढ़ा है ना शॉटगन लाइब्रेरी। शॉटगन लाइब्रेरी हम बनाएंगे, इसमें भी लाइब्रेरी में हम दो लाइब्रेरी बनाते हैं, एक को बोलते हैं lib1 और एक को बोलते हैं lib2। तो लाइब्रेरी 1 और लाइब्रेरी 2 ऐसे दो लाइब्रेरीज बनती हैं जीनोम के लिए। तो होता क्या है,
अब मैं lib1 lib2 नहीं बोलूंगा, मैं 1 और 2 बोलता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट लाइब्रेरी जिसका नाम है 1, इसमें क्या करेंगे, इसमें आप अपना जीनोम जो प्यूरिफाई हो गया है वो पुट करेंगे, प्लस बफर ऑब्वियसली रहेगा वहां पे, प्लस एक फ्रीक्वेंट कटर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पुट करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंट कटर यानी क्या कोई बता सकता है? और सेकंड वाले में हम जीनोम प्लस बफर प्लस रेयर कटर पुट करेंगे। मैंने पढ़ाया था, शायद आपको याद हो। व्हाट इज फ्रीक्वेंट कटर? कोई बताएगा? हाँ, पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा? रेयर कटर और फ्रीक्वेंट कटर में क्या फर्क है? वेरी गुड। वो 6 बेस पेयर वाला है फ्रीक्वेंट कटर है, ठीक है। और जो 8 बेस पेयर वाला है वो रेयर कटर है, ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने जीनोम को टू डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दिए, तो पहला वाला जो है और दूसरा वाला जो है, किसमें ज्यादा बैंड्स मिलेंगे? मोर बैंड्स और लेस बैंड्स एज कंपेयर टू टू? क्या होगा बताइए? किसमें ज्यादा बैंड्स या ब्रेकेज होगा? 6 बेस पेयर कटर में होगा। मान के चलता हूं कि ये 6 बेस पेयर कटर का लाइन है और ये 8 बेस पेयर कटर का लाइन है, तो किस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा ब्रेकेज होगा? समझ रहे हैं क्या? आपके पास दो लाइब्रेरीज बना रहे हो आप, जिसमें जीनोम डाला, बफर डाला और फ्रीक्वेंट कटर डाला। फिर आपने सेकंड लाइब्रेरी में क्या डाला? जीनोम प्लस बफर प्लस रेयर कटर डाला है। तो अब मुझे ये बताना है आपको, नंबर 1 और नंबर 2 में ये दो लाइब्रेरीज है, इसमें कौन से लाइब्रेरी में मोर बैंड्स मिलेंगे? 1 में या 2 में? हाँ बोलो बोलो। डिपेंड क्या रहेगा? रिस्ट्रिक्शन साइट्स रहेंगे मैडम, वहां रहेंगे रिस्ट्रिक्शन साइट्स डेफिनेटली। पर एक सीक्वेंस पे ऑब्वियसली डिपेंड होगा। पर ये देखिए ना आप क्या ले रहे हो। हाँ, इसका क्या मतलब? जीनोम है ना, जीनोम में तो आपको मिल ही जाएगा वो सीक्वेंस। जीन की बात नहीं कर रहे हम, बहुत बड़े जीनोम की बात कर रहे हैं। 6 बेस पेयर कटर ज्यादा बैंड देगा, यस, मोर बैंड्स विथ 6 बेस पेयर्स, है ना। ये समझ लेना है, बहुत जरूरी। और सेकंड, लेस बैंड्स, लेस बैंड्स किसके साथ मिलेंगे? 8 बेस पेयर कटर। फिर और एक क्वेश्चन आएगा, मोर लेंथ ऑफ बैंड किसके साथ रहेगा? 6 बेस पेयर या 8 बेस पेयर? वेरी गुड, 8 बेस पेयर के साथ। समझ रहा है? तो अब आपके पास में क्या हो रहा है कि आपने आपके जीनोम को टुकड़ों में तोड़ दिया विथ रिस्पेक्ट टू 6 बेस पेयर, विथ रिस्पेक्ट टू 8 बेस पेयर। बट दीज आर द टू डिफरेंट लाइब्रेरी, ठीक है। ये अलग अलग हो रहा है, लाइब्रेरी 1 में हो रहा है और एक लाइब्रेरी 2 में हो रहा है। तो लाइब्रेरी 1 में आपको स्मॉल फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं, राइट, है ना। एंड सेकंड वाले में लार्ज फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं। पर मुझे ये क्वेश्चन है कि
overall genome in both is same or not? पूरा ओवरऑल जीनोम दोनों में सेम है या नहीं है? यस, आंसर सेम है, क्योंकि आपने एक ही जीनोम से उसको तोड़ा है ना, वही जीनोम के दो फ्रैगमेंट्स बना के एक की लाइब्रेरी 1 बनाए, एक की लाइब्रेरी 2 बनाए। तो सिर्फ डिफरेंस क्या था कि दो अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपने लिए, इसलिए ओवरऑल जीनोम सेम है। यानी सीक्वेंस दोनों में सेम होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा दोनों में? यस, 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 सेम सीक्वेंस सेम रहेगा। इसका मतलब है कि हम उनको असेंबल कर सकते हैं बाद में, है ना? वी कैन असेंबल, यस वी कैन असेंबल इट। हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है, मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाई यू हैव ब्रोकन डाउन बाय 2 REs? आपने दो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों तोड़े, क्यों यूज किए? कोई बता सकता है? दो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपने क्यों यूज किए जीनोम को ब्रेक करने के लिए? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये आपको पता रहेगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई बताएगा आंसर? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मान के चलिए कि आपके पास में एक, आप हाइपोथेटिकल अपने ये ले लीजिए, एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी आप ये ले लीजिए, एक रस्सी हाथ में ले लीजिए, ठीक है? वो रस्सी को आप 5 बार काट दीजिए, ठीक है? 5 बार काट दिए तो उसके कितने टुकड़े होंगे? काटिए, एक रस्सी को 5 बार काटेंगे तो कितने टुकड़े होंगे? नहीं, 6 टुकड़े होंगे ना। काट के देखो ना, 1 2 3 4 5, काट के देखो कितने हो रहे हैं? 6 फ्रैगमेंट्स हुए ना, 5 कटते हैं, 5 बार काटोगे तो 6 टुकड़े बनेंगे, समझे? तो अभी आपने 6 टुकड़े बना लिए, तो आपकी जो पहले जो रोप थी, जो रस्सी थी, वो पूरी इंटैक्ट थी, अब वो 6 टुकड़ों में टूट गई, ठीक है? अब आप उसको मिक्स कर दीजिए रैंडमली। अब मुझे बताइए, उसका पहला फ्रैगमेंट कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, चौथा कौन सा था, पांचवा और छठवा? समझ रहे हैं क्या? आपने उसके एक रोप के 6 टुकड़े कर दिए। अब 6 टुकड़े करने के बाद मैं बोल रहा हूं उनको जोड़ो फिर से, पर वैसा जोड़ना है कि पहला पहला होना चाहिए, सेकंड सेकंड होना चाहिए, थर्ड थर्ड, फोर्थ फोर्थ, फिफ्थ फिफ्थ। कर पाएंगे क्या? हाँ, हाँ, वो वो यहाँ पता चल जाएगा, पर मैंने आपको बोला ना मिक्स कर दीजिए सबको। तो हिस्ट्री तो नोट ही नहीं किया ना, हिस्ट्री नोट नहीं किया अपन ने, इसलिए ये गड़बड़ हो जाएगी। नहीं कर सकते, हाँ, नहीं कर सकते, है ना? इसका आंसर है कि ये सिस्टम सही नहीं चलता। पर मैं अब क्या करता हूं, मैं एक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है? यही प्रॉब्लम होता है जीनोम में, है ना? अगर मैं जीनोम को कुछ 2500 टुकड़ों में तोड़ता हूं, तो मुझे ये थोड़ी पता है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है ना? क्योंकि वो तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अलग अलग हो जाएंगे। पर फिर भी मैं कोई स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करके उनको असेंबल करने की कोशिश करता हूँ। अब जीनोम असेंबल करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, ठीक है? जैसे अभी आपने बोला ना, कुछ तो प्रीवियस हिस्ट्री होनी चाहिए, यस ये इंपॉर्टेंट है। जीनोम असेंबल करने के लिए आपके पास में कुछ प्रीवियस स्टडीज भी रहती है, ठीक है? कुछ यहाँ पे भी ऐसी है। आपने क्या किया है, थोड़ा फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जीनोम ले लिया था, जीनोम के अंदर आपके पास में क्रोमोसोम थे, आपने उसमें से एक क्रोमोसोम सिलेक्ट किया, क्रोमोसोम की दो लाइब्रेरी बनाई जिसका नाम था लिब 1 और लिब 2।
जिसके अंदर दो आपने आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की है, जिसके कारण आपके पास में बहुत सारे फ्रैगमेंट्स हैं। यहाँ तक आ गया, ठीक है। पर ये करने के बाद में हमको पता चला कि हमारे पास में दो टाइप के फ्रैगमेंट बन रहे हैं, वन इज स्मॉल फ्रैगमेंट, अनदर इज लार्ज फ्रैगमेंट। ये हमको समझ गया। अब ये स्मॉल और लार्ज क्यों किए, इसका क्वेश्चन है, ये मुझे समझना है पहले कि इसका ऐसा क्यों किया गया। और इसको ही बोलते हैं जीनोम असेंबली, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? जीनोम असेंबली। ये जीनोम असेंबली का एक कंसेप्ट है, ये अगर नहीं करेंगे तो वो असेंबल नहीं हो पाता प्रॉपर्ली। तो अब जीनोम असेंबली एग्जैक्टली क्या है, ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है ना, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेस है पहले ये देख लीजिए, ठीक है। जब भी हमको जीनोम असेंबली करनी है तो हमारे पास अभी तक क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो सबसे पहला रिसोर्स ये है कि प्रीवियस जीनोम सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जिस ऑर्गेनिज्म का हम नए से या फ्रेशली जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, उसका जो रिलेटेड स्पीसीज है ना, जो क्लोज स्पीसीज है, उसका मेरे पास में प्रीवियस जीनोम सीक्वेंस अवेलेबल है, ठीक है। ये मेरा पहला रिसोर्स है असेंबल करने के लिए। फिर सेकंड जो एस्पेक्ट है मेरे पास में है पीसीआर टेक्नोलॉजी, ठीक है, पीसीआर टेक्नोलॉजी। फिर मेरे पास में है क्रोमोसोम वॉकिंग टेक्नोलॉजी। ये अब हम वन बाय वन सीख लेते पहले, ठीक है। क्रोमोसोम वॉकिंग टेक्नोलॉजी। फिर मेरे पास है फोर्थ क्रोमोसोम जंपिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर मेरे पास है जीनोम सॉरी जीन नेबरहुड इंफॉर्मेशन, ठीक है। मेरे पास जीन नेबरहुड इंफॉर्मेशन है। देन आई हैव कंस्ट्रक्ट इंफॉर्मेशन एंड पीसीआर टेक्नोलॉजी। फिर मेरे पास एक और टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है AFLP पीसीआर टेक्नोलॉजी। फिर AFPL हो गया, AFLP होना चाहिए, AFLP पीसीआर टेक्नोलॉजी। सो ये सारे रिसोर्सेस मेरे पास में है। फिर मेरे पास में और एक चीज है जिसका नाम है जीनोम असेंबलर, ठीक है। फिर मेरे पास में और एक चीज है जिसको बोलते हैं क्वांटिक असेंबली या क्वांटिक रीड, क्वांटिक असेंबली। ये सारे रिसोर्सेस मेरे पास में अवेलेबल है और उसके बाद ही मैं जीनोम को तोड़ के रखा हूं ताकि मेरे पास में स्मॉल और लार्ज फ्रैगमेंट मिले। ये मेरे पास प्रीवियसली अवेलेबल है सारी चीजें। अब ये वन बाय वन पहले समझ लेते हैं क्योंकि असेंबल करना है हमको जीनोम। तो जीनोम असेंबल करना इतना आसान नहीं है, इसलिए आपको ये सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा सो दैट अल्टीमेटली आप क्या प्रूफ करेंगे, आई हैव अ होल जीनोम सीक्वेंस, ठीक है। आपके पास में होल जीनोम सीक्वेंस है, ऐसा प्रूफ करने के लिए आपको यहां तक पहुंचने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना पड़ेगा असेंबली में। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो है वो है प्रीवियस जीनोम सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। इसका क्या आंसर है थोड़ा समझ लेते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस जीनोम सीक्वेंस ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, अगर आपने या किसी और ने, थर्ड पार्टी ने कोई रिलेटेड स्पीसीज का जीनोम सीक्वेंसिंग करके रखा है और ये स्पीसीज बहुत क्लोज है आपके स्पीसीज से जिसका आप सीक्वेंसिंग कर रहे हो, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, वो है जीन रिपीटेशन पैटर्न। क्या मिलता है आपको? जीन रिपीटेशन पैटर्न, यानी एक जीन के बाद में दूसरा कौन सा जीन है ये आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीन रिपीटेशन पैटर्न। आपका स्पीसीज जिसका आप अभी सीक्वेंसिंग करने जा रहे हो वो क्योंकि बहुत क्लोज है, जिसका ऑलरेडी जीनोम सीक्वेंस इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हम ये भी मान के चल सकते हैं कि मेरे जीन के बाजू में भी वही जीन होना चाहिए
जो पहले वाले के पास में है। यानी मान के चलो ए जीन है पहले वाले नॉन स्पीसीज के पास में, और उसके 1 kb डिस्टेंस पे 1 kb डिस्टेंस पे जीन बी है, ठीक है। फिर उसके 3 kb डिस्टेंस पे जीन नंबर डी है, ठीक है। मैं रैंडम ले रहा हूं, ठीक है। सो ये जो है ना 1 kb डिस्टेंस, इसको बोलते हैं जीनोमिक डिस्टेंस या रन। आप एक रन कंसीडर कर सकते हो कि इतना दूर वो सेकंड जीन है। तो अगर मेरे पास में एक इंफॉर्मेशन आ गई मेरे जीनोम के अंदर कि मुझे ए जीन मिल गया है, ठीक है, तो कितने दूर मेरा बी जीन होना चाहिए? कितनी दूर मेरा बी जीन होना चाहिए? 1 kb। 1 kb क्यों? क्योंकि रिलेटेड है, समझ रहे हैं? क्योंकि वो रिलेटेड है, यानी ये ऐसा ही मिलना चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। और उसके और थोड़े दूर जाके कौन मिलना चाहिए? 3 kb डिस्टेंस पे डी डी जीन मिलना चाहिए। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम जीनोम असेंबली करते रहते हैं तो हमारे को वहां पे ब्रेक आ जाता है। ब्रेक यानी हम स्टॉप हो जाते हैं, वहां पे असेंबल नहीं कर पाते उसको। यानी एक एंड आ जाता है, एंड के बाद में हमको आगे का रास्ता नहीं मिलता है। तो जो एंड होता है ना, जहां पे हम रुक गए, उसको ये जो एंड रहेगा ये इसके एंड से रिलेट करते हैं, जिसका नोन मालूम है। समझ रहा है क्या आपको? अगर ये एंड डी है, समझ रहा है, अगर ये एंड डी है आपके इसमें, ठीक है, तो उस आपके जीनोम में लेफ्ट हैंड साइड पे कौन होना चाहिए? थोड़े दूर पे लेफ्ट हैंड साइड पे बोल रहा हूं। नहीं, पहले कौन होगा? बी, उसके बाद में दे। हाँ, समझ रहे हैं। पर आपका जीनोम असेंबली कहां रुक गया है? डी पे। तो आप वो फ्रैगमेंट ढूंढो आपके जीनोम में जिसमें कौन होगा? राइट, बी होगा या ए होगा। यानी वो फ्रैगमेंट उठा के आप क्या करोगे? यहां पे असेंबल करोगे। रिजल्टेंट व्हाट विल हैपन? पर ये असेंबल करना आपने साइंटिफिकली लिया है ना, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस वाले में यहाँ डी के बाद में थोड़ी दूर में बी होना चाहिए, इसलिए आपने बी को उठा के यहां रखा है। समझा कि नहीं समझा? तो ये प्रीवियस नॉलेज उसका होना चाहिए, तो ही आप उसको वो चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये एक टेक्नोलॉजी हो गई। सेकंड, आप जीनोम असेंबल करते करते स्टॉप हो गए, मान के चलते डी पे स्टॉप हो गए, ठीक है, आप डी पे स्टॉप हो गए, तो डी का एक सीक्वेंस होगा, राइट? हाँ या ना? डी का एक सीक्वेंस होना चाहिए ना। अगर डी का एक सीक्वेंस है तो ये सीक्वेंस किसी और में भी तो होना चाहिए, क्योंकि आपके पास दो लाइब्रेरी है, तो आपका लाइब्रेरी 1 यहां रुक गया और लाइब्रेरी 2 में आपको प्रॉपरली नहीं मिल रहा है ना? तो लाइब्रेरी 2 में भी आपको डी सीक्वेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए आप क्या हो गए? दोनों साइड से फेल हो गए, राइट? डी का सीक्वेंस तो जरूर मिला, पर डी के आगे का रीजन आपको दोनों में नहीं मिल रहा है, तो आप फेल हो गए। आप क्या करेंगे? डी रीजन के आगे नहीं जा पा रहे दोनों में, लिव 1 में भी नहीं जा पा रहे और लिव 2 में भी नहीं जा पा रहे, तो क्या करेंगे बताओ? किसका फायदा उठाएंगे? हाँ, प्राइमर्स का फायदा उठाएंगे। ये यहां से आगे जाएंगे, देख रहा है ये नॉन जीनोम है, इस नॉन जीनोम को एम्पलीफाई करेंगे, या फिर आपका ओरिजिनल जीनोम को फिर से एम्पलीफाई करेंगे, तो उससे एक पीसीआर प्रोडक्ट मिलेगा। उसका सीक्वेंसिंग करो, वो जो सीक्वेंस आएगा ना, वो सीक्वेंस आपको क्लू देगा कि आपके डी के आगे वाला रीजन कौन सा है। समझ रहे हैं क्या? समझा सबको?
तो सामने वाला रीजन अगर आपको असेंबल में मिलता है तो आप उसको अलाइन कर दीजिए। फिर होता है क्रोमोसोम वॉकिंग टेक्नोलॉजी। क्रोमोसोम वॉकिंग टेक्नोलॉजी भी काम की चीज है। क्रोमोसोम वॉकिंग में क्या करते हैं ना कि इसमें हम प्रीवियस हिस्ट्री का नॉलेज रखते हैं अपने पास में, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस जीनोम में देखा कि ए बी से कुछ 5000 न्यूक्लियोटाइड दूर है, ठीक है। फिर बी डी से 6000 न्यूक्लियोटाइड दूर है। फिर डी एच से 7000 न्यूक्लियोटाइड दूर है। पर यहाँ पे क्या हो गया, हमारे असेंबली में ये लिंकिंग नहीं हो पा रही। ए से बी, बी से डी, डी से एच लिंकिंग नहीं हो पा रही क्योंकि ये जो बीच में 5000 न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे ब्रेकेज आ गया या असेंबल नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। तो हम क्या करेंगे, पीसीआर थ्रू ये आंसर देने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस हिस्ट्री में हम देखेंगे कि ए और बी का डिस्टेंस कितना है, 5000 न्यूक्लियोटाइड्स है। तो यहां से हम लॉन्ग रन पीसीआर करेंगे। क्या करेंगे, लॉन्ग रन पीसीआर। लॉन्ग रन पीसीआर क्या करता है, 1000-1500 का एम्पलीफिकेशन नहीं करता न्यूक्लियोटाइड्स का, वो करता है 5000 6000 का एम्पलीफिकेशन करेगा। तो आप अपने पीसीआर के फ्रैगमेंट्स लेके, जो भी आपने फ्रैगमेंट्स किए हुए हैं उसके अंदर लॉन्ग रन पीसीआर करेंगे। तो लॉन्ग रन पीसीआर का एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको। जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका फिर से सीक्वेंसिंग करेंगे। उसकी जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे आपको पता चलेगा कि लिब 1, लिब 2 और आपका पीसीआर, ये तीनों का इंफॉर्मेशन जोड़ के हम कहीं आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, समझे। क्योंकि हमको ये नहीं पता कि ओरिजिनल में या रिलेटेड में ए के बाद बी है, पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे इसमें ए के बाद डी हो और डी के बाद बी हो। इसलिए हम यहाँ पे इतना अश्योर्ड नहीं रह सकते, इसलिए छोटा सा पीसीआर करेंगे। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम वॉकिंग, ठीक है। क्रोमोसोम वॉकिंग इसी तरह होती है। क्रोमोसोम जंपिंग क्या होती है, क्रोमोसोम जंपिंग में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि आप डिस्टेंस बढ़ा देते हो। डिस्टेंस बढ़ा देते हो यानी आप बीच के जो अलीलिक मार्कर्स हैं या मार्कर्स हैं इनको छोड़ देते हैं और थोड़ा डिस्टेंस का रंग चेक करना चालू कर देते हो, ठीक है। यानी कम से कम 25 से 30 जीन्स को आप छोड़ देते हो और उसके डिस्टेंस में देखते हो। इससे क्या होता है, इससे एक चेक मिल जाता है आपको। चेक मिल जाता है ना, आप करेक्ट हो या नहीं। अगर आपको वही जीन वहां मिल रहा है यानी आपने असेंबली बराबर की हुई है, एज पर एक्सपेक्टेशन वो जीन बराबर है तो आपने असेंबल बराबर किया हुआ है। फिर जीन नेबरहुड इन्फो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। जी नेबरहुड से भी आप समझ सकते हो कि आपका जीनोम असेंबली बराबर चल रहा है या नहीं। कंस्ट्रक्ट इंफॉर्मेशन एंड पीसीआर। कंस्ट्रक्ट इंफॉर्मेशन यानी थोड़ा टफ है ये। यहाँ पे हम जब क्लोनिंग करते हैं ना तो हम एडाप्टर्स एंड लिंकर्स लगाते हैं। हमने पढ़ा होगा आपने एडाप्टर एंड लिंकर्स। तो इनकी इंफॉर्मेशन लेके भी हम जीनोम असेंबल को सक्सेसफुली रिट्रीव कर सकते हैं या लिंक रीअसेंबल कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा टफ है, इतना आसान नहीं है समझाना, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। एएफएलपी पीसीआर भी करते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा तब इसका इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। ये सब हो जाने के बाद में आपके पास में दो सॉफ्टवेयर्स रहेंगे जिनका नाम है जीनोम असेंबलर और कॉन्टिक्स असेंबली। तो होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। आपका एक बहुत बड़ा जीनोम था, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह दिखता था, ये आपका पूरा जीनोम है। फिर आपने उसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए, राइट, कुछ इस तरह। ये हो गई आपकी लिब 1 क्योंकि आपने इसके बहुत सारे टुकड़े बना दिए। फिर आपने बड़ा टुकड़े बनाए, समझ रहे हैं ना, किससे बनाए, कौन सी लाइब्रेरी से बनाए, लिब 2 से बनाए। अब ये लाइब्रेरी 1 और लाइब्रेरी 2 का सीक्वेंसिंग किया आपने, ठीक है। सीक्वेंसिंग करने के लिए आप बहुत सारे प्लॉयज इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप उसको हर एक टुकड़े को क्या करेंगे, क्लोन करेंगे, राइट। क्लोनिंग बहुत जरूरी है क्योंकि आपको
एक ही डीएनए का बहुत सारा क्वांटिटी चाहिए रहता है, यानी एक ही फ्रैगमेंट का बहुत सारा क्वांटिटी चाहिए रहता है। इसलिए आप क्या करते हो, उसको क्लोन करते हो। पढ़ा होगा आपने ही, क्लोनिंग करने के लिए आप वेक्टर इस्तेमाल करते हो। वेक्टर दो टाइप के हैं, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। एम्पलीफिकेशन वेक्टर, यहाँ पे आप कौन सा वेक्टर यूज करेंगे, कौन सा इस्तेमाल करेंगे? एम्पलीफिकेशन वेक्टर यानी क्लोनिंग वेक्टर या एक्सप्रेशन वेक्टर, कौन सा इस्तेमाल करना है? एम्पलीफिकेशन वाला यूज करेंगे, राइट। इससे क्या होगा, जो फ्रैगमेंट बना था जो पीस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, वो क्लोन हो जाएगा। वो क्लोन हो जाएगा। क्लोन किसके अंदर हो जाएगा? वेक्टर के अंदर। वेक्टर के अंदर क्लोन होने के बाद में हम उसको एक होस्ट में पुट करेंगे, जिसका जनरली इस्तेमाल इकोलाई के साथ किया जाता है। इकोलाई उसको क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई करने के बाद हम उसको किल कर देंगे। किल करने के बाद में उसको सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद जो डीएनए मिलेगा उसका हम सीक्वेंसिंग करेंगे, ठीक है। सो ऐसे एक एक फ्रैगमेंट का हमारे पास में सीक्वेंस रहेगा, ठीक है, बहुत सारा सीक्वेंस। फ्रैगमेंट नंबर 1, फ्रैगमेंट नंबर 2, तो ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये सब फ्रैगमेंट्स है। ये छोटे फ्रैगमेंट्स, ये बड़े फ्रैगमेंट्स। ये लाइब्रेरी 1 अलग हो गई, लाइब्रेरी 2 अलग हो गई। तो हमारे पास सीक्वेंसेस दो टाइप के लाइब्रेरी में आ गया। सीक्वेंस 1, सीक्वेंस जो है वो lib1 में है, जिनकी लेंथ क्या है, बड़ी है छोटी है? lib1 की लेंथ कितनी है, छोटी है बड़ी है कंपेयर टू lib2? स्मॉल है, राइट। और हमारे पास में lib2 जो है वो कौन है, उसकी जिसकी लेंथ थोड़ी लार्ज। ठीक है, ये दोनों लाइब्रेरी के जो सीक्वेंसेस है अब हमारे पास में आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक फाइल बनाएंगे, ठीक है, यानी इनको क्या कर देंगे, मिक्स। और ये मिक्स करने के बाद में एक सॉफ्टवेयर को दे देंगे जिसका नाम है असेंबलर। असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है। अब आप बोलोगे सर कौन सा असेंबलर, बहुत सारे असेंबलर्स हैं, ठीक है। आप उस असेंबलर्स में उसको पुट करिए। असेंबलर में पुट करने के बाद में सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है कॉन्टिग असेंबली। क्या होती है? कॉन्टिग असेंबली। अब कॉन्टिग क्या है थोड़ा समझ लो। जीनोम के अंदर क्रोमोसोम, हमने क्रोमोसोम को स्मॉल फ्रैगमेंट में तोड़ दिया, राइट, है ना। स्मॉल फ्रैगमेंट, जो स्मॉल फ्रैगमेंट है, स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ द जीनोम, ठीक है, रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है, पार्ट ऑफ द स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ द जीनोम रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम whose sequence is known, whose sequence is known, is called as कॉन्टिग, ठीक है। और एक चीज होती है, कॉन्टिग हैज अ फीचर टू गेट assembled with other overlapping config to give continuity for the genome assembly। ये उसका फीचर है, ठीक है। सो कॉन्टिग क्या है, इट्स अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ द जीनोम। यानी आप इतना बड़ा जीनोम था उसको एक साथ सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। दो टाइप के टुकड़ों में तोड़ा, एक लाइब्रेरी 1 के, एक लाइब्रेरी 2 में। तो वो जितने भी टुकड़े बने वो कौन है, जीनोम के फ्रैगमेंट्स, और वो पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम है और उसका सीक्वेंस हमको पता है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कॉन्टिग। तो कॉन्टिग क्या कर रहा है, कॉन्टिग का फीचर ये है कि वो खुद को असेंबल कर सकता है, किसके साथ में, विद द अदर ओवरलैपिंग कॉन्टिग। ओवरलैपिंग, समझे, यानी उसके जैसा, उसके उसके पार्ट जैसा कहीं ना कहीं थोड़ा सा और मैच मिलेगा उसको, ऐसे कॉन्टिग के साथ ओवरलैप करेगा, जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूटी ऑफ द जीनोम असेंबली मिल सकती है। सो अल्टीमेट फंक्शन क्या है कॉन्टिग का, कॉन्टिग कॉन्टिग हेल्प्स us to give long run, ठीक है, to give us long run sequence,
लॉन्ग रन सीक्वेंस। ठीक है, अब कॉन्टिक्स भी बनाने के पहले, एक्चुअली कॉन्टिक के पहले भी एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रीड्स। ठीक है, रीड्स अगेन बहुत स्मॉल सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल फ्रैगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल सीक्वेंस खुद को असेंबल करके कौन क्या बनाते हैं, कॉन्टिक्स। और कॉन्टिक्स खुद को असेंबल करके क्या बनाते हैं, लॉन्ग रन सीक्वेंस। और उसको हम बोलते हैं जनरली WGS, यानी होल जीनोम सीक्वेंस। समझा क्या आपको? सबसे पहले क्रोमोसोम रहेगा, क्रोमोसोम को हम स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में तोड़ देंगे एंडोन्यूक्लियस से, तो उससे बनेंगे रीड्स। रीड्स भी सीक्वेंस ही है, उसका इंफॉर्मेशन पूरा होता है। इन छोटे छोटे रीड्स को ओवरलैप करके कॉन्टिक्स बनाया जाता है। कॉन्टिक्स बनने के बाद में कॉन्टिक्स का भी असेंबली होता है। छोटे छोटे कॉन्टिक्स मिलके बड़े बड़े कॉन्टिक्स बनाएंगे और अल्टीमेटली सारे कॉन्टिक्स जुड़ के क्या बनाएंगे, होल जीनोम सीक्वेंस। इसको बोलते हैं कंसेंसस सीक्वेंस। ठीक है, कंसेंसस सीक्वेंस, कंसेंसस यानी कंटिन्यूअस सीक्वेंस। अब जब आपके पास में होल जीनोम सीक्वेंस आ गया, यू आर वेरी क्लोज टू द जीनोम सीक्वेंस। किसके पास, आप बहुत क्लोज जीनोम सीक्वेंस के। होल जीनोम सीक्वेंस भी जीनोम सीक्वेंस ही होता है, पर इसको बोलते हैं ड्राफ्ट जीनोम। क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट जीनोम। ड्राफ्ट जीनोम यानी ये इट इज अबाउट टू गेट फाइनलाइज्ड, यानी अबाउट टू गेट फाइनलाइज्ड है, यानी थोड़ा सा उसके अंदर में कई ग्लिचेस रह सकते हैं, करेक्शंस रह सकते हैं। वो सारे करेक्शंस मैंने जो अभी आपको टॉप में समझाया, ये सारी टेक्निक से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ये समझे ना, AFLP PCR से क्लोनिंग करके, कंस्ट्रक्ट करके, नेबरहुड स्टडीज करके, अलिलिक मार्कर स्टडी करके हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, एक कॉन्टिग रॉन्गली असेंबल हो जाता है। ठीक है, रॉन्गली क्या हो जाता है, असेंबल हो जाता है। रॉन्गली असेंबल हो जाने के कारण क्या होगा कि उसका नेबरहुड जो है, नेबरहुड जो है वो रॉन्ग हो गया, चेंज हो जाएगा। रिजल्टेंट उसका फंक्शन भी चेंज हो सकता है। पर ये नेचर में ऐसा तो नहीं है, नेचर में तो वैसे ही है नेचुरल, पर हमको नहीं पता। इसलिए हम क्या करेंगे, पूरा स्टडी करने के बाद में उसको रीअसेंबल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रीअसेंबल। और ये तब तक चलते रहता है जब तक आप अश्योर्ड नहीं हो जाते कि आपका जीनोम फाइनलाइज्ड हो गया है। ठीक है, हाँ, कि अब ये जीनोम का सीक्वेंस एकदम बढ़िया है, फाइनलाइज्ड हो गया है। तो ये सारी प्रोसीजर्स है जीनोम असेंबली में करने के लिए। सबको क्लियर है, कोई डाउट है इसके अंदर, किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो ये सब समझने के बाद में अब हमारे हाथ में आएगा, दैट इज व्हाट इज जीनोम सीक्वेंस। ठीक है, तो अब हम जीनोम सीक्वेंस देखते हैं कि कैसे होता है। ये हमने देख लिया है यहाँ पे जीनोम सीक्वेंस। ये जीनोम सीक्वेंस हमने आई थिंक 50,000 न्यूक्लियोटाइड्स के लिए देखा था। आई थिंक 50,000 न्यूक्लियोटाइड ही है ये पूरे। हाँ, ठीक है, ये 50,000 न्यूक्लियोटाइड्स ही है। तो इनको आप अभी सेव कर देंगे। ठीक है, तो इसको सेंड टू में जाएंगे, कोडिंग रीजन को सेव करेंगे। कोडिंग रीजन, जीन फीचर्स नहीं, कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं, हमको क्या चाहिए, कोडिंग सीक्वेंस। फास्टा न्यूक्लियोटाइड, फास्टा प्रोटीन चाहिए कि हमको, नहीं, फास्टा न्यूक्लियोटाइड। क्रिएट फाइल। मैं हमेशा ये प्रोसीजर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप जीनोम जब डाउनलोड करते हो तो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता हो, क्योंकि कभी भी बहुत हेवी इंफॉर्मेशन होती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, इसको सेंड टू में जाके ही डाउनलोड करें, तभी वो डाउनलोड हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड हो गया। हाँ, हाँ, वो ऑटोमेटिक फास्टर न्यूक्लियोटाइड में हो जाएगा। ऑप्शन ही वही देता है वो, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। कोडिंग सीक्वेंस सिलेक्ट किया तो फास्टा में आएगा। कंप्लीट रिकॉर्ड में जाओगे तो फिर वो पूछेगा क्या चाहिए, दिख रहा है? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कोडिंग रीजन में जाना, कोडिंग सीक्वेंस। यहाँ डाउनलोड हो रहा है, दिख रहा है आपको?
चलो उसको होने दो 5 मिनट डाउनलोड। हम थोड़ा बैक जाते हैं। अब हमारा मेन एम क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट इज आवर मेन एम टुडे नाउ? वी हैव लर्न दैट ओके जीनोम सीक्वेंस असेंबल कैसे होता है, खुद को वो कैसे असेंबल करता है, असेंबलर्स का क्या काम है। ठीक है, अब हमारा मेन जो एम है वो यहां से शुरू हो रहा था। अपडेट व्यू कर देता हूं मैं फिर से, और यहां आने के बाद में अब मेरा काम ये है कि ये कैसे पता चला इनको कि फर्स्ट जीन 410 से शुरू और 1750 पे खत्म हुआ, है ना। अब ये तो सबको क्वेश्चन रहेगा। तो अभी चलो हम यहां से देखते हैं, इसको यहां से कट कर देते हैं। कट कर देते हैं और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एक जगह। डेस्कटॉप पे डाल देते हैं, डेस्कटॉप पे। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें सीख लेना और इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। ये आ गया सीक्वेंस। सीक्वेंस में आपका इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अब हमारा मेन क्वेश्चन है कि 410 टू 1750 उसको कैसे पता चला। दिस इज माय मेन एम टू अंडरस्टैंड। ये सॉल्व करने के लिए अब आपके पास में प्लेटफॉर्म होना चाहिए। यानी अल्टीमेटली गोल क्या है कि गोल ये है कि गोल ये है हमारा कि ये जो सीक्वेंस आ रहा है आपके पास में जीनोम का, इसमें पहला जीन कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, बताइए मुझे यहाँ पे पहला जीन कहाँ से शुरू होता है ना। बड़ा मुश्किल है बताना सर, आई डोंट नो, हम नहीं बता सकते। ठीक है ना। अब जिसने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया होगा उसने कैसे बनाया होगा ये हमको थोड़ा सोचना है। भले ही आज हमारे पास में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, पर जिसने भी पहले बनाया होगा उसकी आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो वो समझने के लिए कुछ अंडरस्टैंडिंग फिर से हमको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। पहला सॉफ्टवेयर हमने समझ लिया जीनोम असेंबलर में। जीनोम असेंबलर ने क्या किया, जीनोम असेंबलर ने कॉन्टिक्स का इस्तेमाल किया, बराबर, और कॉन्टिक्स को असेंबल किया सीक्वेंस के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। एग्जांपल में समझा देता हूं। मान के चलो ये आपके पास में कॉन्टिक 1 है, ये आपकी कॉन्टिक 2 है, और ये आपकी कॉन्टिक 3 है। ठीक है, और आप जीनोम असेंबलर हो, आप खुद जीनोम असेंबलर हो। तो आप खुद कैसे करोगे, आप ढूंढोगे ना कि कहीं मैच मिल रहा है क्या। तो इसमें मैच कैसे मिल रहा है, देखो अभी यहाँ पे AATAGG है, कहीं यहाँ मिल रहा है क्या AATAGG, नहीं मिल रहा है। GATACG, GA है पर TA नहीं है। फिर उसको एंड में यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे जैसे देखो GCTCGAT दिख रहा है, और यहाँ पे भी है देखो GCTCGAT। यानी इस सीक्वेंस को उठा के मैं यहां डाल सकता हूं। सिंबल नहीं हो रहा हो।
छपने नहीं जा रहा है वो, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि इसके नीचे ये इसको रखा हुआ है GCTC। फिर अगला सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। अगले सीक्वेंस में देखिए यहाँ पे भी ओवरलैपिंग है, इसके साथ में देखो नीचे वाले के साथ में। तो अल्टीमेटली ये पूरा असेंबल होके कुछ इस तरह रिपोर्ट देगा। देखो यहां से शुरू होगा कंट्रोल C। अल्टीमेटली कंसेंसस कैसे मिलेगा, देखो कंसेंसस कैसे मिलेगा, कंसेंसस मिलेगा कुछ इस तरह से। कंसेंसस कुछ इस तरह से मिलेगा। ये इतना रीजन पहले कॉपी हो जाएगा, दिख रहा है क्या, ये रीजन इतना आ गया यहाँ पे, कंट्रोल V। फिर कौन सा है कंटिन्यूअस, GCTC GAT, ये आ गया यहाँ पे। अब ये आ गया GC, फिर यहाँ पे भी वही दिख रहा है, राइट है ना, GCTC GAT, क्लियर। तो यहां से वो हट जाएगा, इसके आगे से पार्ट लेगा वो, राइट, समझा कि नहीं, वो मर्ज हो जाएंगे। कॉमन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। नहीं समझा सबको कि नहीं समझा, समझा या नहीं समझा। हाँ ये देखिए यहां तक आ गया, फिर इसके आगे वाला पार्ट यहाँ पे भी कॉमन है, तो सिर्फ एक ही आएगा, ये दो में से सिर्फ एक ही आएगा, बाकी का मर्ज हो जाएगा, ऐसा। फिर यहां से कहां तक पहुंचा, यहां तक, फिर इसके आगे वाला पार्ट यहां से आगे आएगा, कंट्रोल C, यहां आएगा। यहां आने के बाद में कहां तक गया, जी GGT तक गया ना, GGT तक गया। फिर यहां से फिर से आगे आएगा कंट्रोल C। तो इस तरह से वो कंसेंसस होते जाएगा, कंटिन्यूअसली उसको ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस मिलते रहने चाहिए, ठीक है। तो ये था कॉन्टिक्स असेंबली, पर हमारा मेन एम था कि जीनोम को जीन तक कैसे पहुंचाया जाए। नाउ आई गॉट द जीनोम सीक्वेंस। नाउ फर्स्ट मेरा जो प्रायोरिटी है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट टू फाइंड द जीन इन द जीनोम। आपको जीनोम के अंदर जीन ढूंढना है। तो हाउ टू फाइंड द जीन इन अ जीनोम। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपने अभी तक तो बहुत सारी चीजें पढ़ी है जीन के बारे में, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। सबसे पहली बात है कि जीन क्या है, मुझे कोई बताएगा। अगर आप जीन समझोगे तो जीन को सर्च कर पाओगे, राइट। मैं आपको कुछ हिंट्स देता हूं, ठीक है। आप मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज है, ठीक है। आ, एक ऐसी चीज है जो आप रोज सुबह उठ के हाथ लगाते हो और वो आपको इंफॉर्मेशन देती है। फट से बता दिया पहले उठते बार पहले याद आती है उसकी, मेरा फोन कहाँ है ना। तो आपने जो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की वो क्या स्ट्रेटेजी है, टू डिटेक्ट दैट देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन माय लाइफ दैट इज नोन एज मोबाइल, बराबर। फिर आपने और एक चीज को डिटेक्ट करना शुरू किया। अ, अगर मोबाइल है तो मोबाइल के साथ क्या होना चाहिए, राइट। और सिम, सिम होना, फोन का और सिम होना चाहिए ना। तो अगर मैं बोलूं कम्युनिकेशन, है ना, अगर मैं बोलूं कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन कौन हो गया, कम्युनिकेशन कौन हो गया, जीन हो गया ना, हाँ है ना, नहीं समझा है ना। कम्युनिकेशन यानी जीन नहीं हो गया, कैसे, अब मुझे बताओ, आपने यस बोला तो एग्जैक्टली exactly जीन क्या है। जीन के अंदर के पार्ट्स बताइए, जीन को बनाने के लिए क्या क्या लगता है। नहीं, एमआरएनए का जीन को बनाता है,
जीन क्या है, खुद जीन कौन है बताओ, जीन को डिफाइन कैसे करते हैं? हाउ डू वी डिफाइन अ जीन? अरे बताओ जीन के अंदर कौन कौन पार्ट है? ये है ना, हाँ या ना? और क्या है? हम्म, बराबर। और वेरी गुड। और हाँ, और मार्कर, मार्कर नहीं, जीन खुद ही मार्कर होता है। और है ना, होता है ना। और ये होती है क्या उसके अंदर? होता है क्या? जीन के अंदर पॉलीटेल होती है क्या? एट, कहाँ होती है? पॉलीटेल कहाँ होती है? पॉलीटेल किसके अंदर होती है? नहीं होती, मैंने ऐसे ही डाला, आपने हाँ बोल दिया। ओके, तो जीन अगर हमको डिफाइन करना है तो इसके अंदर ये पार्ट्स है, समझ रहा है कि आपको? इनिशिएशन कोडॉन होना चाहिए, इंट्रॉन होना चाहिए, एक्सॉन होना चाहिए, कोडिंग सीक्वेंस होना चाहिए, प्रमोटर होना चाहिए, टर्मिनेशन कोडॉन होना चाहिए। ये सारी चीजें मिलके आपको क्या बना रहा है? जी। तो मुझे ये बताइए सबसे पहले कौन होता है, इन सब में सबसे पहले कौन होता है? जीन को ढूंढना है ना हमको, तो जीन को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जीन के अंदर कौन होता है इन सब में? इनिशिएशन कोडॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, सीडीएस, प्रोमोटर, टर्मिनेशन में कौन कौन होता है, सबसे पहले कौन होता है? हम्म, अरे बताओ, अभी तो पढ़ा था, प्रमोटर होता है ना। फिर फिर कौन है? इनिशिएशन कोडॉन है, फिर कौन है? फिर कौन आएगा? इनिशिएशन कोडॉन हो गया ना, एक्सॉन आ गया, फिर कौन आएगा? इंट्रॉन आएगा, है ना। फिर उसके बाद फिर एक्सॉन्स आएंगे, राइट। फिर कौन आएगा? एक्सॉन आ गया, हाँ, आखिरी में टर्मिनेशन कोडॉन आएगा। एक्सॉन के अंदर ही सीडीएस होता है, राइट। आपने इंट्रॉन एक्सॉन बोला तो राइट। अब ये चीज जो हो गई ये प्रो कैरियोटिक के लिए हो गई, राइट, है ना। ये कौन सा जीन हो गया? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोट में भी सेम ऐसे ही रहेगा, सिर्फ क्या फर्क रहेगा? क्या फर्क रहेगा? क्या नहीं रहेगा? इंट्रॉन्स उसमें नहीं, इंट्रॉन्स नहीं रहेगी, बाकी सब रहेगा। प्रोमोटर रहेगा, इनिशिएशन कोडॉन, एक्सॉन, टर्मिनेशन। यानी ये एक आर्किटेक्चर है, राइट, है ना। आर्किटेक्चर है ना, ये एक आर्किटेक्चर है ना। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, ये कंजर्व्ड है क्या? हाँ, सारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीन के अंदर ये जो आर्किटेक्चर मैंने अभी यहां बनाया है, ये फिक्स है या नहीं है? यानी ऐसा ही हमेशा होता है या नहीं होता है? ये जो आर्किटेक्चर है ये ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बंदे ने सॉफ्टवेयर बनाया उसने, हाँ, होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
कभी आपको अलग अलग टाइप के जीन टाइप सिखाए क्या उन्होंने कि कभी ऐसा होता है, कभी वैसा होता है, कभी ऐसा होता है, कभी वैसा होता है? उसमें भी वेरिएशन रहते हैं, कभी कभी प्रमोटर रीजन सेंटर में आ जाते हैं, पता है ना, ओवरलैपिंग जीन्स भी होते हैं, पर होता तो जीन ही है ना, समझा ना? तो ये कंजर्व पैटर्न है। तो ये है, क्या है ये एक्चुअली, क्या है? कंजर्व पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न अगर कंजर्व्ड है तो सर्च करना आसान है या मुश्किल है? हाँ, इजी, क्योंकि पैटर्न है ना, पैटर्न वो हमेशा रिपीट होते जाएगा, है ना? जैसे आ, हम हमारे दोस्तों को रोज बराबर पहचान लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनके बड़े फिक्स पैटर्न है, वो कैसे दिखते हैं हमको पता है। पर अगर वो मान के चलो कल जाके तुम्हारे सारे दोस्त अमीबा बन गए तो क्या होगा? कैन यू इमेजिन, तुम्हारे सारे दोस्त अमीबा है तो कैसे ढूंढते? हाँ, ढूंढ पाते क्या? नहीं ना, नहीं ढूंढ पाते। अरे यार, सब एक जैसे दिखेंगे और सब नए दोस्त बन जाते हैं आपके रोज। अरे तू कौन है, मैं नहीं पहचानता तेरे को। सारे सूडोपोडिया हो गए रहते हैं ना, सारे सूडो हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, वो कहीं से भी घूम सकते हैं। पर हमारे में हमारा चेहरा पैटर्न फिक्स है, इसलिए हम पहचान पाते हैं। और इसीलिए जीनोम में भी जीनोम में भी जीन्स जो है वो खुद को इस तरह अरेंज किए हैं कि उसका पैटर्न ढूंढना है हमको, क्या करना है? सो जीनोम अनोटेशन में जीन मार्किंग करनी है हमको, क्या करनी है? जीनोम अनोटेशन में जीन मार्क करने हैं, जीन को ढूंढना है। तो जीन को ढूंढने के लिए जीनोम ने बड़ा स्मार्टली उसको रखा हुआ है। उन्होंने कैसे रखा हुआ है कि सारे जीन्स के अंदर क्या है, पैटर्न है। पैटर्न हमने अभी ढूंढ लिया, प्रोमोटर होगा, इनिशिएशन कोडॉन होगा, एग्जॉन होंगे, फिर टर्मिनेशन कोडॉन होगा। अब मुझे ये बताइए, इसमें भी कोई रिलेशनशिप होगा कि नहीं होगा? एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। ये एक सीक्वेंस है, ठीक है? इसमें मान के चलता हूँ कि आपका इनिशिएशन कोडॉन यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है? तो ये आपका +1 रीडिंग फ्रेम आ गई। तो ये हो गए 3, 6, 9, 12, 15, 18, चलते जा रहा है, बढ़िया चल रहा है। 21, एमआरएनए बनते जा रहे हैं। 24, 27, 30, 32, 31, 32, 33, 34, 35, और कहीं तो भी सडनली 34 के बाद में, मैं थोड़ा एडिट करता हूं, यहाँ पे 34 आ गया, फिर 35 तक जैसे ही पहुंचा तो यहाँ कौन आ गया? टर्मिनेशन कोडान। तो 35 अमीनो एसिड के बाद में आपके इस इनिशिएशन कोडान से कौन आ गया? कौन आ गया? स्टॉप कोडॉन। क्या आ गया? स्टॉप कोडॉन। तो जो लेंथ डिफरेंस है, लेंथ डिफरेंस यानी क्या? आपका इनिशिएशन कोडॉन से टर्मिनेशन कोडॉन की एक लेंथ होनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? यानी उसके बीच में सब कोडिंग सीक्वेंस आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर ये बहुत पास में हो गए तो ये कभी भी प्रोटीन दे पाएंगे क्या? नहीं। समझा आपको? तो सर्वर सबसे पहला जो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता है वो ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते कि वो उन एट एटीजीज को ढूंढता है अकॉर्डिंग टू क्या? अकॉर्डिंग टू क्या? ओपन रीडिंग फ्रेम। हाँ, ओपन रीडिंग फ्रेम्स। हाँ, कि वो मिनिमम उतना लेंथ उसका पहुंचना चाहिए, उसको बोलते हैं विंडो साइज। ओके, वो विंडो साइज सेट रहती है उसकी, ठीक है? वो विंडो साइज के हिसाब से ढूंढता है कि इतने इतने आपको मिलने चाहिए। तो ये सबसे पहली स्ट्रेटेजी है। ये मैं आपको थियोरेटिकली समझा रहा हूँ, इसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करते लोग, ठीक है? तो स्टॉप कोडॉन से स्टार्ट कोडॉन का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए। फिर आपने और एक चीज बोली कि जीन के अंदर सर इंट्रॉन और क्या होते हैं?
एक्सॉन कैसे ढूंढते हैं इंट्रॉन एक्सॉन को, बता सकते हैं कोई? इंट्रॉन एक्सॉन को कैसे ढूंढते हैं? आपके घर के बाजू वाला जो घर है उसके बीच में कौन है? आपके दो घर के बीच बीच में कौन है? क्या रहता है आपके दो घरों के बीच में? सबके दो घरों के बीच में क्या है, बताएंगे कोई एक बंदा? वॉल होती है ना, कॉमन वॉल, बाउंड्री, कि ये तेरा घर ये मेरा घर, इधर नहीं आना तू उधर नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे ठहराते ना उस बाउंड्री के कारण। तो इंट्रॉन और एक्सॉन भी तो दो अलग अलग घर है। तो इंट्रॉन को कैसे डिटेक्ट करते हैं और एक्सॉन को कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो हमने एटीजी को तो डिटेक्ट कर सकते हैं ना। एटीजी कौन है? बराबर, इनिशिएशन कोडॉन है, ये हमने बता दिया उसको, ये भैया इनिशिएशन कोडॉन है, ठीक है। पर सॉफ्टवेयर में हमेशा मैं इनिशिएशन कोडॉन एटीजी डालूंगा क्या? मेरी मर्जी है ना, क्योंकि कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एटीजी फॉलो नहीं करते, तो मैं उस सॉफ्टवेयर को बताऊंगा कि ओके ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एटीजी फॉलो करता है, ठीक है। या फिर मैं ऐसा बताऊंगा ये ऑर्गेनिज्म है जो एटीजी फॉलो नहीं करता इनिशिएशन कोडॉन, तो मैं उसको बताऊंगा जीटीजी इनिशिएशन कोडॉन फॉलो करता है। ये पॉइंट समझ गया? यानी मैं इस पॉइंट में बड़ा फिक्स हूं कि इनिशिएशन कोडॉन हमेशा कौन होता है ना, एटीजी जीटीजी, ये मैं बताऊंगा। तो सॉफ्टवेयर को समझ में आ जाएगा, ओके वो क्या बोलेगा, ओके। पर मैं उसको ये कैसे बताऊंगा कि ये इंट्रॉन है यहां इसके बाद में एक्सॉन है, ये कैसे बताऊंगा? इसके लिए आपने पढ़ा नहीं शायद, इसके लिए एक रूल है जिसका नाम है जीटीएजी रूल। कौन सा रूल? कौन सा रूल? जीटीएजी रूल। हमेशा याद रखिए, इंट्रॉन जब खत्म होता है वो हमेशा जीटी से खत्म होता है, और एक्सॉन जब शुरू होता है वो हमेशा एजी से शुरू होता है। इसलिए जो ब्रेकेज होता है इंट्रॉन और एक्सॉन के बीच में, क्योंकि इंट्रॉन तो हटाने हैं ना बाद में अपने को, तो हमको ये बताना है कि इंट्रॉन ये है एक्सॉन ये है, तो हमको ये बताना पड़ता है कि इंट्रॉन कौन है और एक्सॉन कौन है। तो जीटी एजी रूल होता है, इंट्रॉन हमेशा जीटी में होता है, एक्सॉन हमेशा एजी में होता है, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है ना वो ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ना और ये जो सीक्वेंस होते हैं ना ये जीटी एजी के बीच के, और इसके थोड़े बाद फॉलोड बाय और भी सीक्वेंसेस होते हैं थोड़े से, ये एक क्या है, क्या है, पैटर्न, ये एक पैटर्न है, ठीक है। तो ये पैटर्न भी हम ढूंढते हैं, ठीक है। हम क्या ढूंढेंगे? पैटर्न। जिस तरह एटीजी एक पैटर्न है उस तरह इंट्रॉन और एक्सॉन के बीच की जो बाउंड्री है उसका सीक्वेंस का भी एक पैटर्न है, तो उस पैटर्न के बेसिस पे हम उसको ढूंढ लेते हैं, ठीक है। फिर आएगा कोडिंग सीक्वेंस, सीडीएस का भी एक पैटर्न होता है, ठीक है। हर एक कोडिंग सीक्वेंस का एक पैटर्न है, वो उसके फैमिली के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और ये फैमिली हमको पता चलती है, पता रहती है, इसलिए हम जो जीन मार्किंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हर फैमिली का कोड डाल दिया है, पैटर्न डाल दिया है, वो उसके बेसिस पे उसको डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा सीडीएस है। सीडीएस हो जाने के बाद में, सीडीएस हो जाने के बाद में आखिरी में जो आएगा वो कौन आएगा? टर्मिनेशन। इन सब को मिला के, यानी ये सारे फॉर्मुलेशंस को मिला के अल्टीमेटली वो डिसाइड करता है कि एक्चुअल जीन कहां से शुरू होगा और कहां खत्म होगा, ठीक है। समझा क्या आपको? ये उसकी स्ट्रेटेजी है। आपको पॉइंट समझ में आ गया सबको कि किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा? ये मैंने थ्योरेटिकली समझाया, उसने उसने सब चीजों को सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके एनालाइज करके ही आउटपुट में दिया है। तो
अब हम कहाँ थे, यहाँ थे, इतना बड़ा जीनोम सीक्वेंस है मेरे पास। ठीक है, अब इस जीन में मुझे पहला जीन ढूंढना है। उसकी हमने सारी स्ट्रेटेजीज समझ ली ना, सारी स्ट्रेटेजीज। किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर, कैसे शुरुआत होती है, एवरीथिंग इज क्लियर। ना हम उसको प्रैक्टिकली करके देखें। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कि आप अपना जीनोम जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। हमने उसको डाउनलोड कर लिया है, हमारे पास में डाउनलोडेड है। अब नेक्स्ट टास्क है कि हमको एक सॉफ्टवेयर ढूंढना है। हम एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। हमको करना क्या है पहले एक बार देख लेते हैं। हमको कहाँ तक जाना है ये हमको देखना है पहले। हमको यहाँ पहुंचना है, हमको ये देखना है हाउ दिस फेलो हैज केम टू नो दैट पहला जीन 410 से शुरू हुआ। ठीक है, और क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं क्या। ठीक है, हमारा मेन एम क्या है कि अगर ये फॉरेनर बंदा कर सकता है, क्या नाम है इसका, इतना सारे नाम है, तो इसमें से एक कोई भी नाम ले लेते हैं, सबमिटर। फॉर एग्जाम्पल ये बोरिस ने जो सीक्वेंस सबमिट किया, क्या मैं भी कर सकता हूं कि नहीं, ये मुझे चेक करना है। इसके जैसा ही सीक्वेंस मुझे रिपीट करना है और इसी का एनालिसिस करके मुझे रिपीट करके चेक करना है कि इसने जैसा ये पूरा रिप्रेजेंट किया, ये पूरा, क्या मैं भी कर सकता हूं कि नहीं। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से अभी प्रैक्टिकली देखना है। तो हाँ, हम ये कर सकते हैं। हमको क्या करना है, सबसे पहले जीनोम को असेंबल कर देना है। जीनोम की फाइल हमारे पास में अवेलेबल है फास्टा फॉर्मेट में। अब हम एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है जीन मार्क। ठीक है, ये है वो सॉफ्टवेयर, जीन मार्क, जीन प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर। तो ये है वो सॉफ्टवेयर जिसका नाम है जीन मार्क। ये क्या करता है, ये आपके जीन प्रेडिक्शन कर सकता है, यानी आपके जीनोम के अंदर जीन्स कहाँ कहाँ है ये ढूंढ सकता है। इसके अंदर में 4 प्रोग्राम्स है, दिख रहा है आपको, जीन प्रेडिक्शन इन वायरस, फेज एंड प्लाज्मिड। यानी अगर आपने कल जाके कोविड का सीक्वेंसिंग किया तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। दिख रहा है ना, जीन प्रेडिक्शन इन वायरसेस, फाज एंड प्लाज्मिड्स। अगर आपके पास में ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, ठीक है, यानी आपके पास में होल जीनोम सीक्वेंस है या पार्शियल सीक्वेंसेस हैं, तो आप यहाँ आएंगे। अगर आपके पास यूकैरियोटिक जीन है, जीनोम है, तो आप ये वाला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके पास में प्रोकैरियोटिक है, जो आज का है हमारे पास में, तो हम यहाँ आएंगे। देखो यहाँ लिखा है जीन प्रेडिक्शन इन बैक्टीरिया, आर्काई एंड मेटाजीनोम्स एंड मेटा ट्रांसक्रिप्टोम्स। हम इसको इस्तेमाल करें। जीन मार्क एस पे क्लिक करना है। तो ये आ गया हमारा मेन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपके इनपुट है, कैसा आउटपुट चाहिए ये लिखा हुआ है, और जेनेटिक कोड कौन सा फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे जेनेटिक कोड बाय डिफॉल्ट क्या दिया है, 11। आप बोलोगे सर जेनेटिक कोड का क्या यूज है, यहाँ पे हम तो जीन ढूंढ रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर आपके जीन से प्रोटीन को भी ट्रांसलेट करके दे देगा, आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप बोलोगे सर फिर ब्लास्ट की क्या जरूरत है, हर बार जीन उठा के मैं यहाँ डाल देता हूँ। नहीं, ये सॉफ्टवेयर को एक मिनिमम लेंथ लगती है, उसके सिवा ये एनालिसिस नहीं कर सकता। ठीक है, छोटा सीक्वेंस 2000 1500 न्यूक्लियोटाइड का ही एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, इसलिए इसमें वो काम नहीं हो सकता, ये याद रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सीक्वेंस को इनपुट में देना है। तो चूज फाइल हम में जाएंगे, चूज फाइल, और हमको डेस्कटॉप में जाके फाइल को डाउनलोड करना है, हाँ, अपलोड करना है। यहाँ पे डेस्कटॉप में जाएंगे, बायोइन्फॉर्मेटिक्स ट्रेनिंग, सीक्वेंसेस, ये सीक्वेंस ओपन, ये आ गया आपके पास। आपको ये बताना है कि ये कौन से इसका है, जेनेरा का है। प्रोकैरियोटिक है, फेज है, वायरस है, क्या है, प्रोकैरियोटिक। आउटपुट एलएसटी ही रखिए। यहाँ पे आउटपुट में दोनों डालिए, मुझे प्रोटीन सीक्वेंस भी दीजिए और जीन सीक्वेंस भी दीजिए। ये ऑप्शनल है, ठीक है,
आपको यही के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। TGA कोडॉन एज ए ट्रिप्टोफैन, जेनेटिक कोड 4, TGA कोडॉन एज ग्लाइसिन। मैंने आपको बताया ऑर्गेनिज्म वाइज ये वेरी कर सकता है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन आपको लगता है कि मेरे इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए तो आप इसको जरूर चूज करिए, अभी अभी जरूरत नहीं है। स्टार्ट जीन मार्क। थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 मिनट में हो जाएगा। जितना लेंदी जीनोम देंगे उतना टाइम लगता है। एक चीज याद रखिए, ये सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ mRNA कोडिंग जीन्स ही ढूंढ के देगा, ठीक है। जीन मार्क एस आपको सिर्फ mRNA कोडिंग जीन्स ही ढूंढ के देगा, बाकी कोई भी जीन्स ढूंढ के नहीं देगा। rRNA और tRNA नहीं ढूंढ के देगा, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहली जो आउटपुट है वो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इसको मैं क्लिक करता हूँ। देखिए पहला जीन उसने ढूंढा, सॉरी पहला जीन उसने ढूंढ के आपको दे दिया है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ खत्म हो गया। 1341 न्यूक्लियोटाइड का जीन है, 1341। अब हम इसको उससे कंपेयर करेंगे कि उसने भी उतना ही दिया था क्या जो पहले वाला था। लेंथ नहीं दिया उसने, ठीक है। एक ये पोजीशन दिया है, देखो यहाँ पे लोकेशन, कौन सी लोकेशन है। हाँ 410, हाँ 410 से 1750। देखो इसने यहीं पे वही दिया है कि देखो, यस, है ना। उसने उसका नाम भी दिया है, देखो डीएनए ए, इसने भी तो दे दिया डीएनए नाम, देखो दिख रहा है ना। कहाँ गया, ये देखिए दिख रहा है जीन डीएनए ए। इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन वो आपको दे देगा, ठीक है। कौन सी पोजीशन का है क्या नहीं है। इस तरह से आप अपना भी जीनोम डालेंगे यहाँ पे कभी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बैक जाते ये जीन सीक्वेंस है, उसी तरह उसने उसका प्रोटीन सीक्वेंस भी दे दिया है, ये दिख रहा है। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है मेन, ये सीक्वेंस है प्रोटीन सीक्वेंस, MENILD ILDL, देखिए MENILDL दिख रहा है, वही प्रोटीन वहां पे उसने इनपुट में दिया हुआ है। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुटअप है। तो देखो कितना आसान है। ये सीक्वेंस को आपको सिर्फ एनसीबीआई में सबमिट करना है, ठीक है, और वो वहां पे अपलोड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स में उसने पूरे जीन्स की लेंथ बता दी है, देखो यहाँ पे, और एग्जैक्ट पोजीशन भी देखा है। तो फर्स्ट जीन जो है आपका 410 से शुरू हो रहा है, 1750 पे खत्म हो रहा है। सेकंड जीन आपका शुरू हो रहा है 1939 से और खत्म हो रहा है 3075 तक, देखो 1939 3075। सो यू विल गेट एन एग्जैक्ट डिटेल, कौन सा स्ट्रैंड कोड कर रहा है, कहाँ से शुरुआत हो रही है, जीन की लेंथ कितनी है, सारी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। समझा आपको। तो ये होता है जीन मार्क, यानी जीनोम जीनोम अनोटेशन या जीनोम असेंबली। यानी आप पहले असेंबल करेंगे, जीनोम मिलाएंगे, जीनोम के बाद में क्या ढूंढेंगे, जीन, ठीक है। कोई डाउट है।
ये इस तरह से दिखता है कि अरे बाप रे कितना बड़ा काम कर दिया बंदे ने इतना कुछ नहीं है, सारा कुछ सिस्टम गे सॉफ्टवेयर पे है। आप सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझो, प्लानिंग अच्छे से हो जाए, तो ये इतना बड़ा डेटा भी आपके आपके पास आ जाएगा। आप बोलोगे सर आपका कोई सीक्वेंस है क्या, तो आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, सीक्वेंस सबमिट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैंने अभी तक के 9 सीक्वेंसेस सबमिट किए हैं टू द एनसीबीआई। आपको ये सारे दिख रहे हैं, सारे मेरे ही है। आप उसको किसी को भी देख सकते हैं क्लिक करके। सो सीक्वेंस सबमिट करना यानी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा नाम है मेरे गाइड के साथ में। ठीक है, गाइड फर्स्ट सेकंड मी, और मैंने जब मेरा पीएचडी चल रहा था तब ये सबमिट किए हुए। ठीक है, ये 16 RNA का जीन सीक्वेंस है, ये हमने सीक्वेंसिंग करके रिपोर्टिंग पूरी की है। देखो यहाँ पे लिखा है कलेक्टेड बाय, आइडेंटिफाइड बाय एंड ऑल, जब मैं पीएचडी कर रहा था तब का डेटा है। ठीक है, सो इट इज वेरी इजी टू डू एवरीथिंग, अगर आपको पूरा चीजें सिस्टम में पता हो तो। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है क्या, आप पूछ सकते हैं। जीन मार्क समझ गया सबको, ये कैसे यूज करना है, इसमें याद रखिए जीनोम सीक्वेंस ही पुट करना, अदरवाइज आउटपुट्स नहीं आएंगे, जीन वगैरह सीक्वेंस पुट करके नहीं होगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ सिद्धारा मैडम, कुछ क्वेश्चंस है क्या? मैडम नहीं है शायद आज। अंकुश, अंकुश सर कुछ है क्या क्वेश्चंस? किसी का भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन सीक्वेंस मिल जाता है ना, उसको एक बार मालूम कर लेंगे फिर आगे बढ़ जाते हैं, उसको ब्लास्ट करना पड़ता है वो प्रोटीन सीक्वेंस को। प्रोटीन मिल जाएगा ना इसी सॉफ्टवेयर से, ये दे रहा है ना आपको, प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड दोनों दे रहा है, इसको ब्लास्ट। हाँ, अननोन प्रोटीन जनरली नहीं होते, अगर अननोन प्रोटीन है तो उसको हाइपोथेटिकल प्रोटीन कहते हैं, उनको हाइपोथेटिकल प्रोटीन कहा जाता है। जिनका बहुत ज्यादा मैच नहीं मिलता है उनको हाइपोथेटिकल प्रोटीन करके अनोट किया जाता है। हाँ, ठीक है, सो आई थिंक नो क्वेश्चंस आर देयर। आज ही इसका प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आज और कल में इसका प्रैक्टिस कर लो, कल छुट्टी रहेगा। और जितना भी हमने इस हफ्ते में पढ़ा है सब प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। आज के आज इसका पूरा एक अपना छोटा नोट्स बना के रखिए कि कैसे हम ढूंढते हैं और क्या क्या हमको स्टेप्स लेनी पड़ती है। ठीक है, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। खासकर सॉफ्टवेयर कौन से जो भी मैं समझा रहा हूँ उनके नाम बराबर लिख के रखिए। ओके, एनी क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो मैं ऑफ करता हूँ। आई थिंक देर इज नो क्वेश्चन, सो वी आर स्टॉपिंग। हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, नहीं ऐसा बोल नहीं सकते, एनिमल्स में हो सकता है, प्लांट्स के अपने प्रोटीन्स अलग होते हैं। कुछ कुछ जो होते हैं जो कॉमन है वो कॉमन तो रहेंगे ही रहेंगे सब में, जैसे ग्लाइकोलिसिस पाथवे है, तो ग्लाइकोलिसिस में जितने भी प्रोटीन्स है वो आपको 95% कॉमन ही मिलेंगे, है ना। पर जैसे हमारे बॉडी में हम टर्पिनॉइड्स नहीं बनाते, फ्लावेनॉइड्स नहीं बनाते, है ना, प्लांट्स बनाते हैं, तो उनके वो जो प्रोटीन है वो उन्हीं के स्पेशलाइजेशन है, हमारे अंदर नहीं मिलते वो। हम इंसुलिन बनाते हैं, प्लांट्स इंसुलिन नहीं बनाता, है ना, तो वो स्पेशलाइज्ड जीन हो गया हमारे लिए, ऐसा। हाँ, एक्चुअली वो सुपर बनाने की कोशिश करते कोई भी चीज को ना, तो ये तो यहाँ पे भी लीगलाइज्ड है, ऐसा नहीं है, पर
ह्यूमन के ऊपर में कोई भी जीन एडिटिंग अलाउड नहीं है इंडिया में। प्लांट्स के ऊपर आप जीन एडिटिंग कर सकते हो क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, कॉटन में आपको मिलता है ना बीटी कॉटन। हाँ, फिर उसके बाद में आपके पास में हीट रेजिस्टेंट प्लांट्स भी है, स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट भी है। तो ये सब जीएमओ है, जीएमओ अवेलेबल है, बट इंसान के ऊपर नहीं। ठीक है, ओके चलो, और कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन, सो विल स्टॉप हियर। ओके।